we move on to the next state, I want to play what the Prime Minister said today in Amroha, specifically about Yogi Adityanath. He said that this time around, Yogi Adityanath has been in government for 7 years. And that means unprecedented development, and UP will break the record in Lok Sabha elections. Listen. यूपी के सांसद के नाते मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कि अब 7 साल से यहां योगी जी की सरकार है और 19 में तो उनको 2 साल ही काम करने का मौका मिला था। अभी तो 7 साल में उन्होंने यूपी में ये दिखा दिया है कि गवर्नेंस क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, विकास क्या होता है। और इसलिए मैंने कहा लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। JVC Sriram, have you ever heard the Prime Minister lavish such fulsome praise on any leader? And this time saying that Yogi Adityanath, and he referred to Yogi Adityanath at least 4 or 5 times, saying he has done this, he has given Mulya for Ganna, he has ensured that Western UP has changed, and now he's going to break records. What do you make of this messaging? Good evening, Balbaja. I think, he has mentioned even during 2022 elections that Yogi is Upayogi. Because Yogi has transformed himself into a performing leader who appeals to a larger section of people in the northern India. I can be, probably misunderstood, but the fact of the matter is, when you traveled in UP and when you travel in parts of Delhi and Uttarakhand, the message is very clear. After Modi ji, we want to see Yogi. That is the message which is coming down from the common man in the villages. So as a result of which, Modi ji knows pretty well that Yogi ji is somebody who is extremely popular, who has a great connect to the people of Uttar Pradesh, and more importantly to the larger sections of northern India, and as a result of which, rightly, he is using Yogi. Because I think in this election, we are going to see another important thing. Modi ji is going to create a second line of leaders. When we come to Tamil Nadu, we'll speak about it more. To southern part of it, we'll come talking about it more. In UP, he wants to clearly identify that my man is Yogi. It is all, Modi guarantee is one thing, and Modi's man is another thing that is going to be seen constantly in this 2024 election as we move on. Okay, Nahid ji. नहीं, अभी मैं सुन रही थी कि राजनीतिक विश्लेषक आपके कह रहे थे कि मुलायम सिंह, आदरणीय मुलायम सिंह जी की अदावत थी आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की। अरे कहां चंडूल खाने की बातें उड़ा रहे हैं बैठकर टीवी डिबेट पर। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी तो आदरणीय नेताजी को अपना दत्तक पुत्र मानते थे और आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने उनको लीडर ऑपोजिशन बनाया। मेरे वालिद भी साथ में थे। आप कहां चंडूल खाने की बातें उड़ा रहे? जब तक आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी जीवित थे तब तक आदरणीय नेताजी उनके साथ थे। यहां तक उनके सम्मान में आदरणीय नेताजी ने इतना बड़ा विधानसभा में, लखनऊ विधानसभा में इतना बड़ा विशालतम स्टैचू बनाया। वोटों के लिए नहीं, दिल से बनाया, सम्मान से बनाया। और यहां तक उनकी समाधि, माननीय नेताजी की जहां समाधि है, उसके ठीक सामने आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के नाम से एक बहुत विशालतम इंस्टीट्यूट बनाया। ये मोदी जी जैसे नहीं, बीजेपी जैसे नहीं कि वोटों के लिए सब करें, वोटों के लिए आपने भारत। बट मैडम, जाट तो फिर भी आपके लिए वोट नहीं करते ना। आई थिंक बिकॉज यू रिफर टू हर्षवर्धन जी, आई विल गिव हिम टाइम टू रिस्पॉन्ड, बट द फैक्ट स्टिल रिमेन्स दैट डिस्पाइट दैट, नॉट ओनली डिड द समाजवादी पार्टी लूज in Western Uttar Pradesh, when RLD tied up with you, Jayant Chaudhary himself lost in his family bastion seats in Western UP when he was in alliance with you. आप रिस्पॉन्स करना चाहेंगे? पद्मजा, देखिए, पहली बात तो नाहिद की भाषा बड़ी अभद्र है, तो उनको मैं कुछ कहूंगा नहीं। ठीक है, राजनीति करें, ईश्वर करे ऐसे ही आगे बढ़ें, खुद ही सबक मिलेगा। दूसरा ये कि जब हम लोग कहते हैं किसी की पॉलिटिकल लीनिएज, किसी की पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी या दुश्मनी की बात, तो शायद यही वजह थी कि वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठजोड़ होता है, फिर भी वो सफल नहीं होता है। चौधरी अजीत सिंह और अखिलेश यादव एक दूसरे से कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, रिश्ते बने भी तो वो अच्छे नहीं रहे। और यहां तक कि जयंत चौधरी जो अखिलेश यादव के साथ गए और राज्यसभा जाने के बाद भी उनके साथ रुक नहीं पाए, क्योंकि दोनों के वर्कर एक दूसरे के साथ जेल नहीं कर पाते हैं।
झगड़ा बहुत भारी है, अंदर खाने बहुत लड़ाई है। अब उसको बहुत लंबी राजनीति खोलने का ये वक्त नहीं है, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि किसान नेता के तौर पर स्थापित होने और स्थापित करने की लड़ाई लंबे समय तक चलती रही। अब न मुलायम सिंह है न चौधरी चरण सिंह है।